Okay, so continuing with our analysis of GS1, we'll next move to the section on geography. Now, as everybody knows, geography this time was the king of GS1. And the biggest takeaway, which I believe from this year's paper, is please give every subject equal importance. People tend to leave art and culture. You never know when UPSC is going to make art and culture the king of GS1. Ask, 100, 120 marks of art and culture on history based questions. So the only takeaway is last year it was society, this year geography was the king. Now let's analyze the questions of geography. The fourth question. Once again, it was about climate change and effect on island nations. Once again, this for me during the examination hall was a fairly easy question, and for most candidates, because not only is this a PYQ, but this is a very recurrent theme which was running across all our GS papers. I'll also show how questions regarding balancing environment was asked in GS4, GS3, but that's for later. This once again an easy question. You can always mention the island nation of Tuvalu, how there's issue of climate refugees, etc. Because now the only thing which makes it a bit challenging is UPSC is itself asking in the question, discuss with examples. So apart from 3 4 examples, thinking of more can be an issue for some, but fairly an easy question. Now, the fifth question, a very interesting question. Now, my attempt was very poor for this question because this was the last question which I attempted, and I did it nearly in only 2 3 minutes. So I wrote whatever crap I had to, but non-farm primary activity. In economics, everybody knows about primary, secondary, tertiary. We study about this, but this is more, I believe, a prelim centric information, and also checking the conceptual clarity of economics of a candidate. Because if you don't know what this is, then you can never attempt this question. This is what makes it a tough question. First sight में जब मैंने देखा, even I could not remember. That's why I left this question for last. But then I remembered, last year's prelims, if you remember, 2024 prelims में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं जिसमें पूछ रखा है एक, अगर आपको याद हो, कॉलम टाइप क्वेश्चन है कि ये कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है. तो उससे अगर आपको याद आ गया कि माइनिंग होता है, नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी, या फिर फिशरीज, फॉरेस्ट्री, सो दिस क्वेश्चन देन कैन ईजिली बी टैकल्ड. किसी को माइनिंग ही याद आ गया ना, तो आप माइनिंग से इंडिया का पूरा एक मैप ड्रॉ करके यू कैन एक्सप्लेन वेरी इजीली कि यहाँ पे ये माइन इस चीज़ की माइनिंग होती है, यहाँ पे ये. बट दिस इज ऑल इफ यू नो व्हाट दिस इज. The takeaway here is UPSC is asking conceptually very pinpointed things. So please focus on your concepts, and if you don't know, just have a look at the 24 prelims paper. You will find what this truly is. But a tough question. This is a tough question. Now, sixth question. Once again, seeing this question once again, I was on cloud nine because solar energy is in news. Everybody knows about Panchamrit, how India has launched alliances worldwide. This will of course have ecological benefits and economic benefits. Ecological benefits, guess what, कुछ भी करो अब भी आंसर आएगा. रिन्यूएबल है, लेस पोल्यूटिंग है, ग्रीन हाइड्रोजन है, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स, नॉट एन इशू. इकोनॉमिक में क्या है, बोल सकते हैं कि टैरिफ का कॉस्ट फॉर सोलर इज डिक्रीजिंग, सो मोर कॉस्ट इफेक्टिव. इंडिया की नेचुरल जियोग्राफी में आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं स्टेट्स लाइक राजस्थान, यहाँ पे ह्यूज पोटेंशियल है, खाली एरिया भी है. बट किसी भी क्वेश्चन को होलिस्टिक बनाने के लिए यू हैव टू मेंशन द चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड. दो पीपल से कि 10 मार्कर में यू डोंट हैव मच स्पेस. इस क्वेश्चन में इफ यू ड्रॉ ऐसा फ्लो चार्ट टाइप का कुछ भी बना दो, एक डायग्राम ड्रॉ करके, ऐसे चैलेंजेस तुमने दिखा दिए, यू विल हैव 3 or 4 lines for way forward. Do mention. But once again, a easy question. Now, seventh question, tsunamis.
ये एक ट्रेंड है, कितने सालों का भी तुम GS1 का पेपर उठाओ, एक या दो क्वेश्चन का भी कवर जो लगते डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हैं, वो सुनामी, जैसे इस बार सुनामी आ रखा है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा ही। द रैशनल बीइंग की जो सिलेबस का टॉपिक है उसमें ही मेंशन है इवेंट्स के बारे में। सो इजी क्वेश्चन, सुनामी या अपनी हार्बर वेव्स। what was making the question a bit on the moderate side was how and where are they formed, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है कि आपको एक रफ आइडिया रहता है, मतलब जैसे मैंने भी किया इस क्वेश्चन में कि एक लैंड मास दिखा दिया, यहाँ वाटर दिखा दिया, यहाँ पे सुनामी का एक ओरिजिन हुआ, उसके बाद जैसे जैसे वो पहुँचती हैं कोस्ट के पास उनका साइज़ इंक्रीज होता है, बट स्टिल अ मॉडरेट क्वेश्चन, बिकॉज एग्ज़ाम में इतना ईजी नहीं है इतने सारे सब डायमेंशन सोचना, बिकॉज हाउ भी है, वेयर भी है, कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, एंड फिर आपको मेंशन भी करना है कि एग्जैक्टली एग्जाम्पल्स के साथ। दैट्स व्हाट मेक्स दिस अ मॉडरेट क्वेश्चन। नाउ पीपल विल वंस अगेन से कि नहीं नहीं ये तो बहुत ईजी था, एग्जामिनेशन हॉल में लिख के दिखाओ तो समझ में आएगा एग्जैक्टली कितना ईजी है कितना टफ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ज्योग्राफी वॉज द 14th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए सबने कहा कि ये एक रिपीटेड PYQ है कि ऑयल इतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप क्वेश्चन को एक बार देखो तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन पूछा है। इससे पहले एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऑयल की लोकेशन कहाँ कहाँ है वर्ल्ड में, उन्होंने एक स्पेसिफिक पूछा है कि एक्सप्लेनेशन की ऑफ शोर ऑयल रिजर्व क्या होते हैं। सबको एक आइडिया रहता है, मुझे भी एक आइडिया था कि जैसे हम पढ़ते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, तो जहाँ ये ट्रीज़ वगैरह रहे होंगे बेरीड वहाँ पे हमें कोल मिलता है, जहाँ पे मरीन ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वहाँ पे हमें ऑयल मिलता है। ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, बट यही पता था मुझे, एग्ज़ाम में दिमाग लगा सिर्फ इतना ही समझ में आया, तो इस पे पूरा आप क्वेश्चन घुमाना पड़ा कि वो ऑफ शोर इसलिए थे, कभी कभार ऑफ शोर ऑन बन जाते हैं, एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर दिया, बट नॉट अ वेरी गुड अटेम्प्ट ऑन माई पार्ट। सेकेंड पूछा डिफरेंट कैसे हैं, आई एम 100% सर्टन कि ये किसी ज्योग्राफी की ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में लिखा होगा टेक्स्ट बुक में, बट इतना नाम मैं पढ़ के गया था। आई गेस एक एवरेज कैंडिडेट के लिए भी थीम पकड़ना ऑफकोर्स इज़ ईजी, बट इतना स्पेसिफिक पूछेंगे उनका डिफरेंस, आई डोंट थिंक सो वॉज एन ईजी क्वेश्चन एट ऑल। आई कंसिडर इट अ टफ क्वेश्चन। टेक अवेज की PYQ की थीम होगी, तो जैसे आप अगली बार से आप कभी भी पढ़ोगे तो ऑयल पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इसका XYZ, डू इट इन डिटेल, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। जस्ट सॉल्विंग द PYQs won't be enough, analyzing them, thoroughly analyzing them is very important. 15th question, a very weird question. AI, RS and GIS का रोल इन प्लानिंग, ये किसका पार्ट है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, प्लानिंग एक्सेट्रा। इस क्वेश्चन में स्काई इज़ द लिमिट, यू कैन राइट एनीथिंग, आप ड्रोन से लेकर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में मेंशन कर सकते हो, कैसे फॉरेस्ट, मतलब कुछ भी डाल सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन ही इतना ब्रॉड एंडेड है कि यू कैन राइट एनीथिंग। व्हाट विल डिफरेंशिएट योर आंसर फ्रॉम अदर्स इज आप कितना वैल्यू एडेड कंटेंट डालो, कितना डेटा, कितने एग्जाम्पल्स डाल सको। I therefore would rate this question not a very tough question but a moderate question. It is however in no ways an easy question because बहुत ही open ended है। 16th one. Now first look question seems very easy. क्या ही पूछा है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स, ये तो सबको आता है, कोई भी लिख सकता है, बट इज इट, क्योंकि अगर आप देखो उन्होंने एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ पूछी वंस अगेन कि चेंजेस क्या हैं, शेप एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन्स ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट। इसमें आपको सब कुछ लिखना है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, इतना ज़्यादा लिखने को है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको क्या लिखना है एग्जैक्टली, क्या नहीं लिखना है। स्टिल इट्स समथिंग जो फिजिकल ज्योग्राफी में सब करके जाते हैं, बट इट इज़ स्टिल अ मॉडरेट क्वेश्चन, इट इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन। आई डोंट केयर व्हाट अदर पीपल से, एग्जामिनेशन हॉल में पिक एंड चूज़ करना, इतना सोचना टफ है।
The last question on geography, Ganga river basin. When I saw this question, I thought ठीक है, easy है, बना देंगे गंगा रिवर बेसिन पे, क्या है, सिंपल होगा बहुत. फिर आगे का सब पार्ट क्या था कि स्पेशल रेफरेंस में एक्सप्लेन करो चेंजेस इन लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज. ये क्वेश्चन को टफ बना देता है, और टफ क्वेश्चन. जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा, एक दो कैंडिडेट्स थे मेरे आसपास, तो वो बताने लग गए ये थ्योरी थी वो थी. एक जनरल स्टडीज़ वाले कैंडिडेट के लिए जिसको इतना आइडिया नहीं होगा, ये एक टफ क्वेश्चन है. जो एक मतलब एक एवरेज अटेम्प्ट भी इस क्वेश्चन में कर पाएगा, वो यही है कि आप हर एक सेगमेंट को अगर याद करके थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिख सको, जितना भी आपने उसमें सोचा है. बट इतना ब्रॉड कैनवस में सोचना, क्योंकि ये उत्तराखंड से लेकर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल प्लस ट्रिब्यूटरी के बेसिन तो आपके एमपी में भी हैं, टफ बनाता है इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा फॉर एन एवरेज कैंडिडेट. वॉट एवर ज्योग्राफी के टीचर्स बोल रहे थे, नहीं दिस इज़ अ वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. नो, दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन. रिकॉलिंग so much stuff during the examination is very very difficult, so I would rate this as a very tough question. So here is the geography section. If we look at it once again, yeah, so question number 4 easy, but 5th one was tough, 6th one was easy, 7th one kind of moderate. Coming to the LAQ, tough, moderate and very tough. So overall this section for me was a moderate to tough section, maybe because my geography isn't that good. Second takeaway from this section is human and economic geography is very important. हमारी दिक्कत क्या होती है कि हम मैपिंग करते हैं, हम फिजिकल अच्छे से करते हैं, हम इंडियन अच्छे से करते हैं. मैंने भी यही किया था. ह्यूमन एंड इकोनॉमिक क्या है, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं सिर्फ, सोचते हैं हो गया. प्लीज़ इस पर ज़रा फोकस करिए, स्पेशली फॉर मेंस. आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रैंकली कि फिजिकल से 2-3 कोर फिजिकल के क्वेश्चन आएंगे, जैसे फ्योर्ड्स आ गया था लास्ट ईयर, नहीं 23 में, 24 में भी फिजिकल के 1-2 क्वेश्चन थे. फिजिकल मेरा स्ट्रॉन्ग था, इंडियन स्ट्रॉन्ग था, दिस वॉज वीक एंड दिस हैज़ मेनली कॉस्ट मी दिस पेपर, बिकॉज इस सेक्शन में मेरा एक बिलो एवरेज अटैम्प्ट गया है. आई पर्सनली फाउंड द क्वेश्चन टफ. even those around me, those who were not having geography optional, found this paper to be very tough. So compared to the previous section, history, which I and everybody agrees was more balanced, this was a more tougher section. Next, we'll talk about the third section, which is society. Thank you for watching.